جی جسے لوگ کہتے ہیں کمانا اللہ کا حکم ہے. ہاں ہاں تو حکم ہے ہاں تو حکم ہے تو کس کے لیے حکم ہے پہلے یہ بتلاؤ. ہاں جیسے نماز حکم ہے جی بالغ پر ہے، جی جماعت سے پڑھنا مرد پر ہے عورت پر نہیں ہے. جی کتنی رکعتیں ہیں، جی کیا نیت کرنی ہے، جی کتنے وقت میں کون سی نماز پڑھنی ہے، وہ سب اس کا بتلایا کہ نہیں. سفر میں جاؤ تو یہ 2 رکعت فرض والی 4 والی 2 کر لو. جی جیسے روزے ہیں تو سفر میں مشکل کا سفر ہے تو سب روزے نہ رکھو، بعد میں اس کی قضا کرو. یا کوئی ایسی شدید بیماری ہے تو اس میں بھی بعد میں روزہ ٹوٹ جائے تو اس کی قضا 60 روزے سے ہے، 2 مہینے کے لگاتار. سرے سے نہ رکھو تو 1 روزے سے قضا ہے، اور سال میں 1 مرتبہ ہے. نماز 5 وقت روزانہ ہے، ہر زندگی میں 1 بار ہے. زکوٰۃ مال والے کے اوپر ہے، کتنا مال ہے اس کی سارے شرائط بتلائے ہیں، کتنا حصہ فرض ہے یہ بتلایا ہے. ایسا کمانا حکم ہے تو یہ کوئی مطلب ہے کس کے لیے حکم ہے، عورت مرد دونوں کے ہے یا خالی عورت مرد کے لیے ہے تو قرآن حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے. اور عمر کے کون سے حصے میں کمانا فرض ہے، کتنے گھنٹے کمانا فرض ہے، کون سا کاروبار کرنا ضروری ہے. آدمی زندگی میں 1 مرتبہ کر لے فرض ادا ہو گیا یا پوری زندگی کرتے رہے. گھر کے سارے لوگوں پر فرض ہے یا کچھ لوگوں پر فرض ہے. جیسے نماز جنازہ ہے فرض کفایہ ہے، اور اعتکاف ہے یہ بھی سنت کفایہ ہے. کچھ لوگ اگر کر لیں تو سب کے ذمے سے فرض و سنت ادا ہو گئی. ایسے اگر کمانا اللہ کا حکم ہے، گھر میں اگر 10 لوگ ہیں تو 10 پر واجب ہے فرض ہے، یا 1 آدمی پر ہے یا مخیہ پر ہے. اور اگر حکم ہے تو پھر جس آدمی نے نہیں پورا کیا اس سے تو قیامت کے دن سوال ہوگا کہ تم نے کمایا کیوں نہیں. بھائی فرض کا سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ فرض کا تو سوال ہونا بھی چاہیے. بھائی جو اللہ نے فرض کی اس کا سوال اللہ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اور جو چیزیں مباح ہیں یا جو چیزیں نفل کے درجے میں ہیں تو ان کا کوئی اللہ تعالیٰ حساب نہیں لیں گے. اگر آپ نے کیا تو اللہ اس کا اجر دے دیں گے، نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کی اس پر کوئی گرفت نہیں، نہ اس کی کوئی وعید ہے. تو اگر ہر فرض کی وعید ہے، نماز چھوڑے تو اس کا گناہ ہے، جان بوجھ کر روزہ چھوڑے جان بوجھ کر گناہ ہے. فرض زکوٰۃ اگر واجب ہے فرض ہے ارے وہ تو روزی کا نظام تو نماز سے ہے. تو یہ تو کاروبار تو حکم پورا کرنے کے لیے ہیں. حکم پورا کریں گے یہاں سے اللہ تعالیٰ ہمیں اجر دے گا، ثواب دے گا. کاروبار کے 5 حکم ہیں. جی ہم کاروبار میں پڑھنے کے لیے، پرورش کے لیے، پیسے کے لیے نہیں جاتے. جی ہم کاروبار میں جاتے ہیں حکم پورا کرنے کے لیے. ہاں پیسے کے لیے نماز ہے، نماز ہے. ہم تو نماز پڑھ کے اللہ سے مانگیں گے جو حاجت ہوگی. اب اللہ تعالیٰ کو کہاں سے دینا ہے وہ جانے. صحیح بات. ہماری نظر تو اللہ کی قدرت پر ہو اور راستہ اس سے لینے کا نماز ہے. صحیح بات. کاروبار تو اس لیے جاتے ہیں کہ 5 حکم پورے کرنے ہیں. ہم سے کوئی پوچھے گا بھی، کہنے بھائی کہتے تو تم ہی ہو، اللہ پالتا، پھر کاروبار کیوں کرنا ہے؟ کہ کاروبار ہم پڑھنے کے لیے تھوڑے ہی آئے ہیں، حکم پورا کرنے آئے ہیں. جی 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 جی. سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، کم نہیں تولنا ہے، ملاوٹ نہیں کرنی ہے، بکاوا مال واپس لے لینا ہے، عیب کا مال دکھا کے بیچنا ہے. دیکھنا ہے. تو یہ حکم پورے کرنے آئے ہم تو تجارت کے. ہم کا یہاں پرورش کے لیے آئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک فضیلت بیان فرمائی کہ جو بکاوا مال واپس لے لے اللہ اس کی مغفرت کرتے ہیں یا اس کے گناہ معاف کرتے ہیں، جو بھی فضیلت بتائی. جی 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 جی. تو ان صحابی نے دکان کھولی مدینے میں. جی. اور 1 مہینہ ہو گیا. 1 مہینے کے بعد ایک آدمی سامان واپس لے کے آیا. جی. اور اس سے سامان لے کے رکھ لیا اور دکان بند کر دی. کہنے بھائی دکان کیوں بند کر رہے ہو؟ کہنے لگا بس آج دکان بند ہو گئی، ہم تو اس فضیلت کے لیے آئے تھے. جی 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 جی. کہ میرے نبی نے فرمایا تھا جو بکاوا مال واپس لے لے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. صحیح. ہم تو اس لیے آئے تھے، ہم یہاں پرورش کے لیے آئے تھے. پرورش کے لیے نماز ہے. بے شک. اس لیے صحابہ کو نمک کے ڈھیلے کی ضرورت ہوتی تھی تو مسجد جا کے اللہ سے مانگتے تھے. اللہ سے مانگتے. صحیح. اب انہوں نے بنا دیا دعوت تعلیم استقبال سے مسجد آباد ہوگی، قیامت تک تو نہیں ہوگی. نہیں ہوتے نہیں ہوتے نہیں ہوتے. ارے مسجد آباد جب ہوگی جب سارے نمازیوں کا ذہن یہ بن جاوے کہ حاجتوں کا تعلق اللہ کی قدرت سے اور اس سے لینے کا راستہ نماز ہے.
नमाज है, बेशक। अब हर आदमी को जरूरत आती रहेगी, सारा दिन मस्जिद जाता रहेगा, मस्जिद आबाद होती रहेगी। सही बात, सही बात। दावत तालीम बन जाता इस्तकबाल, ना। दावत तालीम इस्तकबाल कितनी देर करोगे? 10 मिनट करोगे, 20 मिनट करोगे, घंटा करोगे, 2 घंटा करोगे? जी जी जी। दावत तालीम इस्तकबाल का अमल तो इसलिए है ताकि जहन ला ला के ये बना दिया जावे कि परवरिश का निजाम नमाज से है। बेशक बेशक बेशक। अल्लाह की ये कुदरत मामला सबको मालूम होगा तो मस्जिदें खाली कहाँ होती हैं? फिर खाली कहाँ होती है? अगर हर आदमी का, हर नमाजी का, सबको भी छोड़ो, जो नमाज पढ़ने आ रहे हैं उनका जहन ये बन जावे कि हमारी हाजतों का ताल्लुक कुदरत से है, बेशक। और कुदरत से फायदा उठाने का रास्ता नमाज है सही बात। और दुआ है। हाँ अब ये सारे नमाजी जब इन्हें हाजत आती, ये अपनी मस्जिद जाते, सही। और हाजत आती रहेगी, सारा दिन हाजतें आती हैं। और नहीं तो कम से कम ये तो साहबा का कौल है कि हम अपनी फर्ज नमाजों को, अपनी हाजतों को उठा के रखते थे फर्ज नमाज के लिए। जी 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 जी। असबाब में साहबा जाते थे, दुकान में, कारोबार में, वो सवाब के लिए जाते थे। जी। हाजत पूरी कराने के लिए मस्जिद जाते थे। सही बात, सही बात। ये मस्जिदें अल्लाह से लेने के लिए बनाई गई हैं। जी। अल्लाह ने कहीं नहीं बोला है जाओ कमाओ, ये कहीं नहीं बोला अल्लाह पाक ने। बोला नहीं। हाँ अल्लाह ने ये बोला है, जो ये लिखा है कि जब तुम नमाज कायम कर चुको, नमाज कायम कर चुको, जी, अब तुम्हें इजाजत है, तुम अल्लाह की जमीन पे चलो फिरो और उसका फजल तलाश करो। फजल तलाश करो है, सुन गो। हाँ, बात है। पहले नमाज कायम, पहले कहा है नमाज को कायम कर चुको, फिर इजाजत दी है, हुक्म नहीं दिया है। जी जी जी। हुक्म में और इजाजत में फर्क होता है। इजाजत दी है, जाना चाहो जा सकते हो, हुक्म नहीं है कि जाना है तुम्हें। अच्छा। हुक्म इसका दिया है कि हम तुमसे रोजी कमाना नहीं चाहते, हमारी चाहत नहीं हम तुमसे रोजी कमाना। सही। ए नबी जी, हम आपसे रोजी कमाना नहीं चाहते, रोजी तो आपको हम देंगे। आप तो अपने घर वालों, आप तो नमाज कायम कीजिए और अपने घर वालों को भी नमाज का हुक्म कीजिए। और बेहतरीन अंजाम तो परहेजगारी का है, तकवे का है। तो अल्लाह की चाहत नहीं है कमाना है, कमा ले जाओ, कमा ले जाओ, क्या भी नहीं। अभी चिल्ला लगा कि अभी 8 दिन भी आने जाओ, कैसी बात तो उनके जुबान से निकल रही है, क्या सिखले का। वो तो अरे भाई, ईमान सीख के आएंगे तो जुमले बदलेंगे ना। सही बात है। जबान के बोल जब बदलते हैं, जब आदमी की ईमान समझ में आता है। ईमान समझ में आता, और ईमान समझ में नहीं आता तो जुबान के बोल वही पहले से ज्यादा शिर्क सीख के आएंगे। शिर्क आते बेशक आते। मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते थे, अल्लाह के रास्ते में जाके अगर किसी से अपनी हाजत के लिए कोई सवाल कर दिया तो तुम अल्लाह के रास्ते से शिर्क लेके आओगे पहले से ज्यादा। सही। और अगर तुमने अल्लाह के रास्ते में जाके एक बार अल्लाह के गैर से होना बोल दिया तो तुमने सारे दिन की मेहनत में आग लगा दी। लगा दी, सही बात। ऐसा है जैसा बारूद की ढेरी में चिंगारी दिखा दी हो। चिंगारी दिखा दी। अब बताओ, सारा दिन तो बोल रहे हैं वहां बैठ के, इसने ये कर दिया भाई, फला से ये हो गया, दवा से ये हो गया, तो फिर बातिली तरक्की करेगा दिन में? बातिली तरक्की करता। तो बात ये है भाई, जमात में जा रहे हो, जा किस लिए रहे हो? जाना आना असल थोड़ी है। असल थोड़ी है क्या? बस एक ही धुन लगी है, एक ही बात चली है कि बस निकलो और निकालो, निकलना जरूरी है। खुरूज का कोई बदल नहीं, ये भी कहते हैं खुरूज का कोई बदल नहीं है। बदल नहीं है। अब खुरूज का कोई बदल नहीं है तो फिर जो ये बता रहे हैं वो क्यों नहीं खुरूज करते हैं? वो तो कभी 3 दिन नहीं लगाते, 3 दिन में नहीं लगाते, कभी नहीं लगाते, कभी गश्त नहीं करते। जो भी बताएंगे आगे वो कोई काम नहीं करेंगे, वो सिर्फ बयान करने को काम समझेंगे। बयान कर को काम समझेंगे, बयान कर उनको वली मान ले, हमें पीछे मरना। हालांकि मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते थे, ईमान पर बयान तो मुशरिक भी कर लेगा, मुनाफिक भी कर लेगा। अल्लाह अकबर। बयान करना ये ईमान की निशानी नहीं है। जी जी जी। ईमान की निशानी ये है कि जब अल्लाह ताला कोई हाल डालते हैं तो तुम अल्लाह की जात पर भरोसा करके, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला अमल करके कितने मुतमईन होते हो, या छोड़ के भागते हो मैदान। जी जी जी। और सबब की तरफ जाते हो, शक्लों की तरफ जाते हो। ये थोड़ी है अमल भी कर लिया और शक्ल में भी चले गए। अब तो ये तो फिर ये तो दोगलापन हुआ।
दोगला बनना। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले अमल पर आपको एतमाद ही नहीं है, इसका मतलब तो। ये तो माने नहीं, सही बात है। भाई जब एक डॉक्टर के पास हम गए कि जी मेरे सर में दर्द है, उसने एक टेबलेट दे दी, फिर आते हुए दूसरे डॉक्टर के भी चलो भाई, तो फिर तुम्हें पहले वाले डॉक्टर पे एतमाद कहाँ है? कहाँ आया बोलो तुम? नहीं आया। इसलिए ये तो अपने काम को घुमा के रख दिया है इन्होंने। अब बात चलाओगे ईमान की तो चलनी नहीं, सत्यानाश करके रख दिया। हाँ सत्यानाश करके रख दिया। करके और सबसे ज्यादा अल्लाह की कुदरत के मुनकिर यही लोग हैं इस वक्त। यही लोग हैं, बेशक भी ये लोग। नए आदमी से बात करो, शराबी से बात करो, बेनमाजी से बात करो, यूँ कहेगा हाँ बेशक अल्लाह तो ऐसे ही करने वाला है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल में तो है ही है कामयाबी। बस हम ऐसे बन जाए, वो अपनी बात रखेगा भाई हम गुनहगार हैं, हम कर नहीं रहे हैं, ये हमारी गलती है, हम बने नहीं है ऐसे। गलती वो खुद के ऊपर जिम्मेदार कमी डाल लेते हैं। हाँ ये जिन्होंने क्या करते हैं, जिद करते हैं और ये लाएंगे कुदरत के मुकाबले पे असबाब को लाएंगे, सबब को लाएंगे, और हुजूर के अमल के मुकाबले पे असबाब को लाएंगे, किसी न किसी शक्ल को ला के रखेंगे। तुम कहोगे सूरह फातिहा में हर बीमारी की शिफा है, तो ये कहेंगे दवाखानी सुन्नत है। तो दवाखानी सुन्नत है तो जाओ खाओ, डॉक्टर को कहो जाके कि भाई हमें दवा दे, ऐसी दे दवा जो बीमारी जावे ही नहीं, बस हमेशा लगी रहे दवा। और दुआ करो अपने अल्लाह ये दवा की सुन्नत हमारे घर में बच्चे में जिंदा करा दे। चलो फिर इस दवा की सुन्नत को छोड़ते क्यों हो? दुआ क्यों करते हो? दुआ भी करवाते हो, पैसा भी खर्च करते हो कि ये दवा की सुन्नत छूट जावे। मसला तो इनका ये है, सही बात समझ में आती नहीं, समझने की कोशिश भी नहीं करते। वो ना क्या बोल रहे हैं, फिर दुनिया में निजाम चलाया कहीं को अल्लाह, अगर दवाई में शिफा नहीं रहती तो कहते हैं अबे चलाया है। इम्तिहान का है, फिर इम्तिहान है वो समझ में आती नहीं बात। अब अल्लाह इतना पैदा करा तो जो चीजें जड़ी बूटी है ये सब भी ये साइंटिस्ट ये लोग कैसे हैं, उन्होंने उसका ताकीक कर कुछ ना कर रही को इन्हों बोलती सो। अब फिर अमल पर वादे काहे किए हैं? फिर अमल पे वादे अल्लाह के नबी बता को ही यहाँ देखे तो सबब का यकीन इन्हों सुन्नत कहती है। मैं बोला तो उम्मत फेंक लगा रहे अल्लाह के नबी को। उम्मत को सूरह फातिहा देखो, लोगों को दवा कुछ खा को लोगों को सूरह फातिहा बोलते हैं क्या? सूरह फातिहा में बीमारी की शिफा बता के अल्लाह ताला ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दवा से हमें बचा दिया। ये है बात है। मौलाना यूसुफ साहब फरमाते थे जो रास्ता हम तुम्हें बता रहे हैं उसमें कमाई ज्यादा है, खर्च है ही नहीं, जब चवन्नी का भी नहीं है। सूरह फातिहा में शिफा का खर्च कहाँ खर्च है? और फरमाते थे जिस मेहनत पर तुम लगे हो उसमें कमाई कम है, खर्चा ज्यादा है। सही बात। कमाओगे 500 रुपए, शाम को बीमार होगे, पता चला 1000 रुपए का पर्चा बनेगा डॉक्टर। ईमान सीख लेते तो सूरह फातिहा से ले लेते, क्योंकि दवा के रास्ते से अगर शिफा देंगे वो भी तो अल्लाह ही देंगे। वादा उस पर कोई किया नहीं है, देवे न दे कोई वादा नहीं है। सूरह फातिहा पे वादा किया है लेकिन यकीन है नहीं सूरह फातिहा का। और आगे अल्लाह ताला भी बोलता रहा ना, उन्होंने मिनल कुरान मा व शिफा व रहमतल लिल मोमिनीन के वास्ते कुरान शिफा भी है। हाँ बिल्कुल रहमत है करें, लेकिन हमें वो बात को पढ़ रही उसके पीछे जिंदगियां लगा रही, 10 साल लगा रही, 15 साल लगा रही, फिर उसके मुनकर बन रहे। फिर ये क्या कुरान पढ़ने का, क्या आलिम करना, क्या मुफ्ती करना, इसको क्या बोलना, वो तो समझ में आता। वो तो ईमान सीखे बगैर अगर कुरान सीखा जाएगा तो कुरान समझ में थोड़ी आवेगा। थोड़ी आता क्या बोलो? कुरान में से भी असबाबे निकाल के लाएगा। और ईमान सीख लेगा तो असबाब में से भी कुदरत निकाल के लाएगा। बेशक उसे समझ में आ जाती बात, अल्लाह उसे समझाते हैं। हाँ असबाब से भी अगर उसका काम चल रहा होगा तो यूँ कहेगा जबान से ना असबाब से थोड़ी ना हो रहा, कुदरत से हो रहा। और अगर ईमान नहीं सीखा, अमल से काम चल रहा होगा तो यूँ कहेगा सबब से हो रहा। सबब से हो रहा था। अमल करके भी यूँ कहेगा सबब से हो रहा।